سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ قائم ہے۔ مخیر حضرات عطیات جمع کرا رہے ہیں۔ انارکلی بازار کے تاجروں نے 1000 ملبوسات عطیہ کیے ہیں۔ صدر رحمت مارکیٹ حاجی نعیم نے منرل واٹر اور بسکٹ بھی بھجوائے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھیے۔ آپ کا بھیجا ہوا راشن، گرم کپڑے، کمبل، خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے متاثرین تک پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک میں لگے ریلیف کیمپ میں مخیر حضرات کی جانب سے عطیات کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو کی جانب سے متاثرین کے لیے راشن عطیہ کیا گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں فہد قیوم سے۔ جی فہد، بتائیے گا کیا سامان لایا گیا ہے؟ 42 کے آفس میں قائم کردہ فلڈ ریلیف کیمپ کے اندر شہر بھر کے مخیر حضرات کی جانب سے امدادی سامان بھجوانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایسے میں ہال روڈ تاجر برادری اتفاق گروپ کے جو صدر ہیں حاجی نواز پپو، ان کی جانب سے بھی ایک ٹرک جو ہے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں پہنچایا گیا، جس کے اندر جو امدادی سامان ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر میڈیسن، پانی، آٹا، نمک، چینی، گھی اور بسکٹس دیگر تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ میڈیسن بھی موجود ہے کہ جو پانی کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے، وہ بھی یہاں بھجوائی جائے گی۔ میرے ساتھ اس وقت حاجی نواز پپو اور دیگر عہدیدار بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ نے سامان بھجوایا ہے، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ملک و قوم کے لیے ہمیں کس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ کیمپ بھی لگایا، ہمیں دعوت بھی دی۔ میں نے کو پچھلے ہفتے جب سیلاب آیا تو ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے لاہور میں سب سے پہلے ہال روڈ پہ کیمپ لگایا اور تمام تاجر برادری سے اپیل کی کہ برائے کرم لاہور میں اب کیمپ لگے ہیں۔ الحمدللہ ہماری آواز سنے گی۔ اب ہر لاہور میں ہر تاجر تنظیم نے کیمپ بھی لگایا۔ الحمدللہ ہم نے بہت اچھا، ہمیں وہاں پہ لوگوں نے فنڈنگ کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ملٹری جو ہمارے لاہور کمانڈر ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، ہم وہاں پہ بھی ٹرک بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں جو ایک لسٹ ملی، جو وہاں پہ ضرورت تھی، الحمدللہ ہم نے سارا سامان اکٹھا کیا، 3-4 دن لگا کے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سامان مستحق تک پہنچے گا کیونکہ یہ لوگوں کی امانت ہے، اس لیے آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے حاجی نواز پپو کی بات سنی، یہاں پر دیگر عہدیدار موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سا سامان موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے بڑھ چڑھ کے اس کے کار خیر میں حصہ لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں وائس چیئرمین ہال روڈ اتفاق گروپ کی طرف سے امین بیگ میرا نام ہے۔ الحمدللہ حاجی نواز صاحب کی قیادت میں ہم نے جب لوگوں کو کہا تو انہوں نے دل کھول کے فنڈنگ کی ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہال روڈ سے فنڈنگ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آزمائش ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے، صرف یہ ہمارے اوپر بھی آزمائش کا ٹائم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کل کو ان سے نعمتوں کا حساب لیا جائے تو یہ نہ ہو کہ ہم حساب نہ دے پائیں۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان جیسے بھی ایفرٹ کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے، اور الحمدللہ یہ لوگوں کی مانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ متاثرین تک اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں میڈیسن ہے، پانی ہے اور کافی چیزیں ہیں دیگر جو نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم میرا میسیج یہی ہے مسلمانوں کو کہ دل کھول کے جو نا فنڈنگ کریں، جو جس طرح بھی ایفرٹ کر سکتا ہے، اس ٹائم وقت ہے ایفرٹ کرنے کا۔ جی بالکل، آپ نے عہدیداران کی بات سنی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل گھڑی ہے، اس وقت جو ہے ہمارے جو متاثرین بھائی ہیں ان کو امداد کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے ان کی اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں اور سیلاب زدگان جو ہیں ان کی مدد کے لیے سامان پہنچائیں۔ جی فہد قیوم، بہت شکریہ آپ کا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایمریٹس کا بڑا اعلان۔ ایمریٹس ایئر لائن کا دبئی سے پاکستان امدادی سامان کی ترسیل مفت کرنے کا اعلان۔ ایمریٹس ایئر لاہور سمیت پاکستان کے 5 شہروں میں آنے والی ہفتہ وار 53 پروازوں میں مفت امداد سامان لے کر آئے گی۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایمریٹس کا بڑا اعلان۔ ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی سے پاکستان امدادی سامان کی ترسیل مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایمریٹس ایئر پاکستان آنے والی ہفتہ وار 53 پروازوں میں مفت امدادی سامان لے کر آئے گی۔ مفت امدادی سامان کی ترسیل دبئی سے لاہور، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ اور پشاور پہنچائی جائے گی۔ امدادی سامان میں راشن، ادویات اور مختلف اقسام کے آلات کی دبئی سے پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں ترسیل کی جائے گی۔ لاہور بورڈ کے تحت پیپر دینے والے لاکھوں طلباء کے لیے بری خبر۔ تعلیمی بورڈ نے پیپروں کی ری چیکنگ فیس میں 400 روپے اضافہ کر دیا۔
इससे कबल फ़ी पेपर के लिए रीचेकिंग फ़ीस 700 रुपये वसूल की जाती थी, जबकि चेकिंग फ़ीस बढ़ने के बाद फ़ी पेपर 1100 रुपये कर दी गई है। रीचेकिंग फ़ीस बढ़ने पर तलबा परेशानी से दो चार हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के तहत पेपर देने वाले लाखों तलबा के लिए बुरी खबर। तालीमी बोर्ड ने पेपरों की रीचेकिंग फीस में 400 रुपए इजाफा कर दिया। इससे कबल फी पेपर के लिए रीचेकिंग फीस 700 रुपए वसूल की जाती थी। रीचेकिंग फीस बढ़ने के बाद फी पेपर 1100 रुपए कर दी गई है। तलबा का कहना है कि पेपरों की रीचेकिंग फीस पहले ही बहुत ज्यादा थी। महंगाई के इस दौर में फीस बढ़ाना नाइंसाफी है। तलबा ने चेयरमैन बोर्ड से मुतालबा किया है कि बोर्ड हुकाम पेपरों की रीचेकिंग फीस में कमी करें। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि असातिज़ा का मुआवजा 20% बढ़ने की वजह रीचेकिंग फीस बढ़ाई गई है। नए तालीमी साल के 5 माह गुजर गए, स्कूलों में बच्चों को कुरान मजीद के मजमून की किताब फ्राहम न की जा सकी। रवां साल बच्चों से नाजरा कुरान बमा तर्जुमा 100 नंबर का पेपर लिया जाना है। बोर्ड इम्तिहान में भी नहम और दहम में 50-50 नंबर का पेपर होगा। ज़राए के मुताबिक कुरान मजीद के मजमून की किताबों की छपाई के बावजूद मजीद 2 लाख किताबों की छपाई होना बाकी है। महकमे तालीम के मुताबिक कुरान मजीद के मजमून की किताबों की पब्लिशिंग जारी है। 30 सितंबर से कबल छपाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। किताबों की छपाई के साथ साथ स्कूलों में किताबों की तरसील का सिलसिला भी जारी है। एक्साइज हुकाम की नाअहली या मिलीभगत लाखों प्रॉपर्टी मालिकान से अरबों रुपए के टैक्स की वसूली ना की गई। लाहौर के 9 अरब समेत सुबह भर के 21 अरब के साबिका वाजबात के लिए जोन्स के रिकॉर्ड की चेकिंग का आगाज कर दिया गया। लाहौर की 2 जोन से 1.25 अरब के बकायाजात सामने आ गए हैं। लाहौर का 9 अरब समेत पंजाब भर का 21 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स ना देने वाले और कई सालों से वाजबात अदा ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक्साइज हेड ऑफिस में वर्किंग शुरू करके मखसूस जोन्स के रिकॉर्ड की चेकिंग का आगाज कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला का वाजबात की वसूली के लिए खुफिया सर्वे किया जा रहा है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अब तक चेकिंग के मुताबिक लाहौर के 2 जोन से 1.25 अरब के डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज सामने आ गईं। एक्साइज के रिकॉर्ड और अर्बन यूनिट के डैशबोर्ड पर गुज़श्ता 8 सालों से 21 अरब के वाजबात सामने आए हैं। साबका वाजबात की वसूली के लिए सर्वे में प्रॉपर्टियों की तफसीलात चेक की जा रही हैं। रवा साल भी प्रॉपर्टी टैक्स में 21 अरब का टारगेट दिया गया है, जबकि लाखों प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर से डीजी एक्साइज के हुक्म पर साबका वाजबात की वसूली की जाएगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की हदायत पर जग टीम का छापा गंगाराम अस्पताल के सामने वाक़ई ज़ीशान फार्मेसी और बिलाल फार्मेसी सदबमोहर कर दी गई। जग कंट्रोलर इमरान सरफराज की सरबराही में टीम ने कार्रवाई की। दोनों फार्मेसीज़ पर नशावर अद्वियात और स्टीराइड्स की गैर कानूनी फ़रोख्त का सिलसिला जारी था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की हदायत पर जो है वो ड्रग टीम की जानिब से आज गंगाराम अस्पताल के सामने जो मौजूद फार्मेसीज हैं उनके ऊपर छापा मारा गया और वहाँ पे नशावर अद्वियात, स्टीरॉइड गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने, इसके साथ साथ ज़ायदुल मियाद अद्वियात रखने और बगैर जो वारंटी है उसके जो है वो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे फरोख्त करने पर ज़ीशान फार्मेसी और बिलाल फार्मेसी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ड्रग टीम जो है वो ड्रग कंट्रोलर इमरान सरफराज की सरबराही में जो है उसने ये कार्रवाई की है और उसकी जानिब से न सिर्फ जो है दोनों फार्मेसी, ज़ीशान फार्मेसी और बिलाल फार्मेसी को सरबमोहर किया गया, बल्कि ये तमाम जो ज़ायदुल मियाद अद्वियात थी इनके नमूने उठाए गए। इसके साथ साथ जो है वो बगैर वारंटी इस्तेमाल किए जाने वाले जो सर्जरी के धागे हैं उनके भी सैंपल्स लिए गए और दोनों फार्मेसीज का चालान भी ड्रग कंट्रोलर इमरान सरफराज की जानिब से कर दिया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी। गुज़श्ता 3 रोज़ में मुख्तलिफ शहरों में 112 अफराद गिरफ्तार हुए और 592 मुकदमात दर्ज। हुकाम की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसर की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ, जिसमें सूबे में डेंगी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर जारी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हदायत की। चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 9, रावलपिंडी में 100, अटक, चकवाल और बिहाड़ी में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का इंसदाद डेंगी मुहिम के हवाले से दाता गंजबख्श कॉलोनी शादमान का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने इंसदाद डेंगी इंतजामात का जायज़ा लिया और इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की।
सीओ हेल्थ मलिक फैसल और एसी मॉडल टाउन सोनिया सद्दफ ने कमिश्नर लाहौर को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने इंसदादे डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी, लार्वा और डेंगू सर्विलेंस का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का कहना था, शहर में इंसदादे डेंगू मुहिम के सिलसिले में 6000 से ज़ायद टीमें काम कर रही हैं। डेंगू के हवाले से आगाही फ्राहम करने के लिए मीडिया मुहिम शुरू की जाएगी। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट गर्ल्स हाई स्कूल टाउनशिप लाहौर में यौम दफ़ा पाकिस्तान के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख और मारूफ माहिर तालीम और तज्ज़िया का सलमान आबिद ने ख़ुसूसी शिरकत की। सबक है बुनियादी तौर पर जहां हमने अपने जवानों को शोदा को खराज अकीदत पेश करना है, वहाँ इस बात का अहद भी करना है कि हम किसी भी शोबे में हो, चाहे हम घर के अंदर ही क्यों ना बैठे हों, ये जज्बा, ये जुनून कि हमें अपने मुल्क की। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का दूसरा रोज़, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश में मुल्क भर से 50 फर्नीचर और इंटीरियर ब्रांड्स की शिरकत। सार्फिन को खरीदारी पर 40% तक रियायत दी जा रही है। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के 39वें एडिशन का दूसरा रोज DHA इवेंट हॉल में जारी रहा। नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी की। ऑपरेशंस हेड शाहिद महमूद ने कहा कि नुमाइश में तमाम ब्रांड्स की जानिब से 40% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। शहरियों के लिए तमाम इकसाम का फर्नीचर और होम डेकोर की अशिया मौजूद हैं। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से फर्नीचर कंपनीज आई हुई हैं, लाइक इंटरवुड है, हैबिट है। अभी हम डिज़ाइनों के स्टॉल पे खड़े हैं। इसी तरह और भी जो से अच्छे ब्रांड्स हैं इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। एग्जिबिटर्स का कहना था कि पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपनी अशिया को नुमाइश के लिए पेश करते हैं। हमारा ब्रांड जो है वो वुडलैंड फर्नीचर साहिवाल से है और हम बेस भी साहिवाल से करते हैं और ऑलमोस्ट हम 81 से मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। और एक्सपो में मॉडर्न और सकाफती फर्नीचर भी नुमाइश के लिए पेश किया गया, जबकि फर्नीचर समेत होम डेकोर, रग्स, कारपेट, मैट्रेस और दीगर अशिया भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब थीं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। मॉडल टाउन लिंक रोड गोल चक्कर पर सड़क में गहरा शगाफ पड़ गया। इंतजामिया गायब। शगाफ किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिए। मॉडल टाउन मेन लिंक रोड के ऊपर और मैं यहाँ पे राउंड बाउंड के ऊपर एक गहरा शगाफ पड़ गया है। शगाफ की गहराई इतनी ज़्यादा है कि जो किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। इससे पहले भी इसी जगह पर जो है एक शगाफ पड़ा था जिसको कई माह बाद जो है ठीक किया गया, जिसमें एक गाड़ी को हादसा भी पेश आया था। इंतजामिया की जानिब से जब हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि आज जो है शगाफ पड़ा है, कल संडे है, कल ऑफ है, पीर वाले दिन जो है इसको कुछ बेहतर किया जाएगा। फिलहाल इसको सिर्फ कार्डन ऑफ कर दिया गया है। इसके बावजूद यहाँ पे जो राउंड बोर्ड के तरफ जो ट्रैफिक है उसकी सिलसिला जारी है। इंतजामिया की टीमें यहाँ पे मौजूद नहीं, किसी किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं की जा रही। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त।